Namaskar friends, once again I am Prashant Patil coming with a new topic, that is do's and don'ts of chromatography. Many of my friends from QC requested me to start some topics from the quality control department so that they can gain something, they can receive information about the quality control related topics, because from long time we are working on the quality assurance and compliance related topic. We have completed Schedule M, 4 sessions, but till today I have not touched the quality control department. From today onwards I am going to discuss about the many topics from the quality control, even from the microbiology and quality assurance and other areas. Obviously we will continue on that. So let us begin with do's and don'ts of high performance chromatography. If required, I will make a separate video on do's and don'ts of other chromatographies like GC, right? So today we will purely discuss on do's and don'ts of HPLC. So who are the operator of HPLC? जो भी HPLC ऑपरेट करते हैं, जो भी डेटा रिव्यू करते हैं, जो भी ट्रबल शूटिंग करते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है. सो लेट अस बिगिन. व्हाई शुड वी नो अबाउट डूज एंड डोंट्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी? मेजॉरिटी ऑफ फेल्यूर्स लाइक डेटा इंटीग्रिटी, टेस्टिंग डिलेज, लैबोरेटरी इंसिडेंट्स are originated from the inadequate chromatographic practices. So in order to avoid the DI related issues, testing delays, laboratory incidents, failures, we must know do's and don'ts of the chromatography. What are the do's and don'ts? Let us begin. First we start with the solvents and reagents. Regarding solvents and reagents, we must use correct solvents, use good quality of reagents for making diluents and mobile phases. Why should we use correct solvent? Because it will save troubleshooting due to spurious peaks, baseline noise. By using good quality reagents, we can save the time required for the compliance. क्योंकि अगर हम लो ग्रेड का रिएजेंट यूज करेंगे तो शॉर्ट टर्म वो कॉस्ट बेनिफिट अपने को दे सकता है, लेकिन इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ एनालिसिस. सेविंग अच्छी बात है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस इट शुड नॉट बी. सो गुड क्वालिटी ऑफ रिएजेंट्स एंड करेक्ट सॉल्वेंट यूज करना बहुत जरूरी है. बफर शुड बी प्रिपेयर्ड फ्रेशली फॉर अ डेज यूज. If you store it for a prolonged time, this can change the pH and possibility of microbiological growth, microbiological contamination cannot be ruled out. Buffer reagent can contain stabilizing agents, but better to buy buffer without stabilizer. अगर stabilizing agents है जैसे कि सोडियम मेटाबाइसल्फेट, this can affect the optical characteristic of buffer. Hence consider buying the buffer without stabilizer, and which will ultimately impact on your result. Solid reagents है, इसको आपको small quantity में purchase करना चाहिए, because solid reagent containers get easily contaminated by repeated use. अगर आपने बड़ा कंटेनर यूज किया है तो आपको उसको repeatedly ओपन करना पड़ेगा और ये कंटामिनेशन हो जाएगा. That ultimately impact on your result. Use ultra pure water for the buffer preparation, because deionized water can be used, but some of organic compounds that can affect your HPLC from the deionized water. So it is always recommended to use HPLC grade water, ultra pure water. Filter all your solvents using 0.45 micron filter before use. ये फिल्टर करना क्यों जरूरी है? कभी कभी क्या होता है, अगर फिल्ट्रेशन हमने स्किप किया तो इट कैन ब्लॉक आवर कॉलम. तो इन ऑर्डर टू अवॉइड द ब्लॉकेज ऑफ कॉलम, फिल्ट्रेशन इज मस्ट. इवन डू नॉट स्किप फिल्ट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कंसिडरिंग इवेपोरेशन वाइल वैक्यूम फिल्ट्रेशन, क्योंकि ये भी अपने काम का नहीं है, ये ब्लॉकेज कर सकते हैं.
Filtration will enhance the life of pump and plunger, seals, flow cells, etc. So it is always recommended, it must, I say, you have to filter the your mobile phase. Regarding mobile phase, never adjust the pH of buffer if organic solvent is present in it, as the pH meter does not read the correct value in presence of organic solvent. Organic solvent अगर उसके अंदर है तो pH meter आपको fluctuation बताएगा, दिखाएगा. So never adjust the pH buffer once organic solvent is present. Each solvent line should be with an inlet filter and kept clean to avoid cross contamination. When you are not using, store them preferably in 50% volume by volume acetonitrile and water. It will avoid the microbial contamination, it will avoid the blockage, it will avoid the embedding of dust, and it will save your time, it will reduce the troubleshooting. It is not recommended to use highly acidic or alkaline solution unless otherwise you confirm that your HPLC and columns withstand that stress. It is always recommended to use aqueous mobile phase. You might be thinking that using aqueous mobile phase will increase the possibility of microbial contamination. In order to avoid this possibility, you have to use it only for 24 to 48 hours. By doing this, you will avoid the microbial contamination and you will work under the safe side. It is always recommended to use the aqueous mobile phase. While filtration, confirm that filtrate has enough flow through the filter assembly. This indicates the filter pores are not blocked. तो आपको ये देखना है. If the filter pores are blocked, it may take additional time for filtration, leading to evaporation of organic solvent. तो sufficient enough flow is very necessary. Do not skip filtration of organic solvent. We have already discussed on that. Degas the mobile phase to remove all dissolved gases. अगर dissolved gases उसके अंदर है तो क्या हो जाएगा? एयर बबल्स क्रिएट हो जाएंगे और ये एयर बबल्स आपके सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, पूरे स्पीक जनरेट कर सकती है. तो उसके लिए आपको डीगैसिंग ऑफ मोबाइल फेज करना बहुत ज़रूरी है. सोनिकेशन भी आपको कर सकते हैं इन ऑर्डर टू रिमूव ऑल बबल्स इन द मोबाइल फेज. Always place your mobile phase as high as possible compared to your pump manifold. In order to avoid, it will avoid the trace to the pumping station. आपने अगर हाइट पे रखा है तो पंपिंग स्टेशन के ऊपर ट्रेस नहीं आएगा. One more thing is, don't top up the mobile phase reservoir. Never top up the mobile phase reservoir. अगर ये आप करते हो तो दिस में कंटामिनेट एंटायर बफर इन द रिजर्वायर. फिर क्या होगा, उसका कुछ मतलब नहीं बनेगा. हमारा सिस्टम रन होता रहेगा, हमने टॉपअप किया और हमारे मोबाइल फेस को कंटामिनेट किया. इसके कारण क्या हो जाएगा, अपना टाइम भी बचेगा नहीं है और अपने रिजल्ट भी गड़बड़ हो जाएंगे. राइट. रिगार्डिंग कॉलम्स, डोंट डेवलप न्यू मेथड ऑन यूज्ड कॉलम. इससे क्या होगा, अनवांटेड मेथड चेंजेस आपको करने पड़ेंगे और आपका मेथड डेवलपमेंट का जो भी टाइम आपने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया वो वेस्ट हो जाएगा. मेथड आपकी बराबर काम नहीं करेगी. तो इससे अच्छा है कि आप यूज्ड कॉलम के ऊपर ही मेथड डेवलप करो. एटलीस्ट फॉर फ्यू रन्स यू कैन यूज द कॉलम एंड देन इट इज recommended to use the column for method development. And one more thing, don't assume that all C18 columns are similar or equivalent. आप अगर फार्माकोपिया देखेंगे तो फार्माकोपिया में कभी कभी उसका मेक भी दिया रहता है, ब्रांड नेम भी दिया रहता है, उसका मॉडल भी दिया रहता है. तो इट इज़ एडवाइजेबल, इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज दैट पर्टिकुलर कॉलम ओनली. अदरवाइज आपका रिजल्ट रिस्पॉन्स बराबर नहीं आएगा. आप C18 कॉलम बोले तो कोई भी C18 कॉलम सेम होता है ऐसा अज्यूम नहीं मत करो.
वो एक्चुअल जो मॉडल है, एक्चुअल जो ब्रांड है वही यूज करना है आपको। मेक श्योर दैट कॉलम thermostat is closed while the analysis is in progress, right? This is regarding the column. Ensure compatibility of new solvent with existing one before change. अगर आप किसी रीज़न से सॉल्वेंट चेंज करना चाहते हैं तो वो सॉल्वेंट को चेंज करने से पहले आपके कॉलम की कंपैटिबिलिटी इंश्योर करो। दूसरा, आपके प्रीवियस सॉल्वेंट के साथ भी उसकी कंपैटिबिलिटी आपको चेक करनी पड़ेगी, अदरवाइज इट विल गिव द फॉल्स रिजल्ट। बफर शुड बी ऑलवेज फ्लश्ड फ्रॉम द एनालिटिकल कॉलम एंड इंस्ट्रूमेंट आफ्टर यूज। इससे क्या हो जाएगा, ये जो सॉल्ट डिपोजिशन होता है वो अवॉइड हो जाएगा। आपके जो डेलिकेट पार्ट से लाइक फ्रिट्स, फ्लो सेल्स, प्लंजर असेंबली, उसका लाइफ बढ़ेगा, वो खराब नहीं होगा। तो इसके लिए आपको बफर को कॉलम से फ्लश करना चाहिए, राइट। यूज रिकमेंडेड पिक ट्यूबिंग्स ओनली, दैट इज रिकमेंडेड बाय योर मैन्युफैक्चरर। कोई भी पिक ट्यूबिंग आप यूज करोगे तो वो बैक प्रेशर दे सकता है, मोबाइल फेस का फ्लो रेट पे इम्पैक्ट कर सकता है। तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू यूज द ट्यूबिंग विच इज रिकमेंडेड बाय इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। यूज एसपीएलसी कॉलम एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर। हम क्या करते हैं, कभी कभी उल्टा उसको कनेक्ट करते हैं, उल्टा कनेक्ट करते हैं। सो जो डायरेक्शन पे उसने लगाने के लिए बोला है उसी डायरेक्शन पे लगाओ, उसके फ्लो डायरेक्शन के हिसाब से उसको लगाओ। उसका जो लाइफ है, उसका जो परफॉर्मेंस है, दैट इज डिपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन आल्सो। सो मैन्युफैक्चरर ने आपको जो भी बताया है उसके हिसाब से आपको वो कॉलम यूज करने हैं। डू नॉट रिवर्स द कॉलम मेनली। रिवर्सिंग योर कॉलम विल कॉज डिस्टर्बिंग योर कॉलम पैकिंग, एंड अगर वो कॉलम पैकिंग डिस्टर्ब हो गया तो आप जानते हैं कि उसके रिजल्ट भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। Many time we need to go for the column regeneration instead of procuring new one। हम ऐसा बोलते हैं कि हमको रीजनरेट करना चाहिए। रीजनरेशन इज ओके इफ योर मैन्युफैक्चरर अलाउज, इफ योर मैन्युफैक्चरर एक्सेप्ट दैट। अगर वो केस में है तो आप रीजनरेशन करके कॉलम को यूज कर सकते हैं फॉर स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम। डोंट यूज द सेम कॉलम फॉर मल्टीपल मेथड। इससे क्या हो जाएगा, उसमें जो अनइम्पॉर्टेंट पिक आया है पहले मेथड का, तो वो क्या करेगा, वो दूसरे मेथड के ऊपर इंपैक्ट करेगा। इससे अच्छा है कि आप ट्राई टू डेडिकेट द कॉलम्स। रिगार्डिंग ऑपरेशन एंड अदर कंपोनेंट्स, while changing a normal phase to the reverse phase and vice versa, ensure that flushing is done using solvent miscible with both phases and preferably with reverse phase। अगर आप नॉर्मल से रिवर्स में जा रहे हैं, रिवर्स में नॉर्मल पे जा रहे हैं, तो आपको फ्लशिंग करना बहुत बहुत ज़रूरी है, और मेनली इन केस ऑफ रिवर्स फेज। रिगार्डिंग ऑपरेशंस एंड अदर कंपोनेंट्स फॉर HPLC सिस्टम विथ मल्टीपल मोबाइल फेज इनलेट्स, फॉर एग्जाम्पल quaternary gradients, do not put all inlets in one mobile phase reservoir when they are not in use. Do not run the pumping station dry, it will damage your plunger assembly. If your HPLC have microfrit in the pumping station, change it periodically। ये क्यों चेंज करना पड़ेगा पीरियडिकली आपको? ये जो माइक्रोफ्रिट है ये क्या करता है, बैक प्रेशर जो है वो अवॉइड हो जाएगा, ओवर स्ट्रेस ऑन द पंप अवॉइड हो जाएगा, स्टॉपेज ऑफ सिस्टम अवॉइड हो जाएगा अगर आप माइक्रोफ्रिट periodically, defined interval, or whenever there is requirement, you have to change it. Regarding other practices, do not place any sample while in the auto sampler without having septient cap। इससे क्या हो जाएगा, अगर आपने विदाउट सेप्टाइड कैप रखा तो उसके अंदर जो भी सैंपल रहेगा उसका इवेपोरेशन होके आपके रिजल्ट्स एबरेंट आ सकते हैं, आपके रिजल्ट्स फॉल्स आ सकते हैं। It is preferable to use one time vial, else unless otherwise। अगर आप सेम वायल रिपीटेडली यूज करना चाहते हैं तो आपके पास क्लीनिंग प्रोसीजर होना चाहिए,
और वैलिडेटेड क्लीनिंग प्रोसीजर होना चाहिए। HPLC वायल वॉशिंग का जो भी क्लीनिंग प्रोसीजर है उसको आपको वैलिडेट करना चाहिए, उसके बाद आप वायल का रिपीटेड यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज इट इज़ एडवाइजेबल टू यूज़ वन टाइम वायल्स। चेंज नीडल सीट बेस्ड ऑन द यूसेज टू अवॉइड द सीड्स लीकेज। रिगार्डिंग अदर प्रैक्टिसेस, लेबल द वायल बिफोर प्लेसिंग देम इनटू द ऑटो सैम्पलर ट्रे। आप जानते हैं अगर विदाउट लेबल आपने वायल अंदर रख दिया तो उसके बाद आप उसकी आइडेंटिटी खो दोगे। प्रोवाइड द रेकमेंडेड एनवायरमेंट मेनली टेम्परेचर फॉर HPLC सिस्टम। इससे क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर विल हैव इम्पैक्ट ऑन द मोबाइल फेस बिहेवियर एंड विच अल्टीमेटली result into variation in the retention time and which is ultimately results in the failure of your product because of the system, not आपका प्रोडक्ट खराब है इसके लिए नहीं, बिकॉज हमने कुछ गलत किया, हमारा सिस्टम में गलत यूज़ किया, हमने टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं किया, उसके कारण से मोबाइल फेस पे इम्पैक्ट आया। मोबाइल फेस के इम्पैक्ट आने से रिटेंशन टाइम पे इम्पैक्ट आया, रिटेंशन टाइम पे इम्पैक्ट की वजह से हमारा फॉल्स रिजल्ट आ गया। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू प्रोवाइड द रेकमेंडेड एनवायरनमेंट फॉर ऑल योर HPLCs। अगर कुछ HPLCs में या कुछ, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल इंस्ट्रूमेंट्स, अगर उसमें RH कंडीशंस और टेम्परेचर बोथ दिया है तो हमको उसको टेम्परेचर RH बोथ देना है। बेटर टू हैव ऑटो सैम्पलर विथ थर्मोस्टैट, वो अपने आप फिर कंट्रोल करते जाएगा। रिगार्डिंग स्टैंडर्ड एंड सैंपल, हमारे जो थर्मोलेबाइल एंड लाइट सेंसिटिव सैंपल्स है उसको फ्रेशली प्रिपेयर करो और फ्रेशली इंट्रोड्यूस करो। आप तो जानते हैं, इट इज़ नीडलेस टू से दैट कि इसको क्यों करना है। अगर वो सेंसिटिव है तो वो डिग्रेड हो जाएंगे और रिजल्ट गलत आ जाएंगे। यूज़ ब्रैकेटिंग स्टैंडर्ड इंजेक्शंस आफ्टर इंजेक्शन ऑफ मल्टीपल सैंपल्स। नेवर यूज सैंपल इंजेक्शन टू चेक द सिस्टम सुटेबिलिटी चेक्स unless it is specified in the relevant test procedures। अगर हमने सैंपल इंजेक्ट किया तो ऐसा हो जाता है कि हम लोग ट्रायल रन कर रहे हैं, और ट्रायल रन करने का मतलब ये है कि वी आर टेस्टिंग इनटू कंप्लायंस, सो ये डेटा इंटीग्रिटी का इशू हो जाएगा। रिगार्डिंग इंटीग्रेशन पैरामीटर्स, इंटीग्रेशन पैरामीटर के बारे में आप इंटीग्रेशन मैनुअल अगर करते हैं तो प्लीज स्टॉप मैनुअल इंटीग्रेशन। मैनुअल इंटीग्रेशन अलाउड है इन केस ऑफ RS, लेकिन वहाँ पे आपको किसी आपके सीनियर ने उसको काउंटर चेक करना है, उसको फिक्स करना है, और वैली टू वैली अगर आप प्रॉपरली इंटीग्रेशन करते हो तो दैट इज़ ओके। एंड इम्प्योरिटी टेस्टिंग के केस में इट नीड टू बी ऑथोराइज्ड बाय अप्रोप्रिएट पर्सन। थैंक यू फ्रेंड्स, होप this video will helpful to you. It will reduce your troubleshooting time, it will reduce OS, it will increase your capacity and trust on the quality control practices by the authorities and by your higher management. Finally, I request you, आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और रेकमेंड करो टू सब्सक्राइब। साथ ही आई रिक्वेस्ट यू टू क्लिक ऑन द बेल आइकॉन सो दैट यू विल रिसीव द नोटिफिकेशन फॉर ऑल अपकमिंग वीडियोस। वन मोर थिंग, आपके जो भी क्वेश्चंस है आप मुझे लिख सकते हो, और मैं आपको, अगर आपके क्वेश्चंस रिलेटेड टू HPLC है, आपके क्वेश्चंस रिलेटेड टू अपकमिंग टॉपिक्स भी है, आप कोई टॉपिक रेकमेंड भी करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, मुझे आप लिख देना, आई विल रिवर्ट ऑन दैट। थैंक यू, जय हिंद।